Hello friends, I am Dr. Madhur and today I am going to discuss with you a very important topic, that is Indian economy under British rule or colonial exploitation of India. Well friends, there are two different set of people who have different opinions with regard to British rule. For example, one set of people, they think that British rule was beneficial in many ways. The another set of people, they say that they were exploitative in nature. And in fact, when British left, India was reduced to an impoverished nation. We inherited a backward economy from British in 1947. Well, जो लोग कहते हैं कि British rule positive था, they say number one that British unified India into one nation. अगर British नहीं होते तो आज शायद हम छोटी छोटी रियासतों में बंटे होते. Second, British they transformed Indian economy from barter economy to a modern मॉनेटरी सिस्टम. उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मनी दिया. बैंकिंग, मॉडर्न बैंकिंग ब्रिटिश की देन है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम स्टैब्लिश हुआ. थर्ड, दे गेव कमर्शियल आउटलुक टू इंडियन एग्रीकल्चर. व्हेन ब्रिटिश केम, इंडियन एग्रीकल्चर वाज सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर, सो दे ट्रांसफॉर्म्ड द नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. दे गेव मॉडर्न आउटलुक टू इंडियन एग्रीकल्चर. नंबर फोर, दे डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. For example, Indian Railway, the first passenger train, it was 1853 में ये मुंबई पोर्ट से थाने की तरफ चली थी. So 1947 तक आते आते जो इंडियन रेलवे था, it became fourth largest rail network in the world. British developed inland road network. British developed ports in India. For example, Kolkata port, Visakhapatnam port, Chennai port, Mumbai port, they were developed by British. And finally, British gave us an efficient administrative setup. They developed bureaucracy, they developed judiciary, revenue system was given by them, education system जो introduce किया उन्होंने, public works and so on. Well, एक दूसरा set of क्योंकि हमारी जो आज की चर्चा है वो है colonial exploitation of India, तो इसके बारे में मैं विस्तार में चर्चा करूंगा. लेकिन एक पर्शियन प्रोवर्ब है that history is the mirror of the past and lesson for the future. तो अब चलते हैं, थोड़े इतिहास के पन्ने उलटते हैं और समझते हैं कि हम पहले क्या थे और अब हम क्या हो गए. Well, मैं बात करूंगा 1 AD की. 1 AD इंडियन इकोनॉमी का जो साइज था in terms of GDP, it was $33,750 million. पॉपुलेशन थी 5.5 करोड़ और पर कैपिटा इनकम उसके हिसाब से बना लगभग $450. 1600 AD तक आते आते इंडियन इकोनॉमी का जो साइज था, मींस जीडीपी ऑफ इंडिया, इट इंक्रीज टू $74,250 million. इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज टू 13.5 crore and India's per capita income was $550. $450 से $550 हो गया. Well, ये जो डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये इंगस मैडिसन, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुआ, उसकी एक किताब थी वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव, बड़ी फेमस बुक है, वहां से ये मैं डेटा आपको दे रहा हूं. वेल, अब 1947 की बात करें. 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ के होगी 36 करोड़. इंडिया का जीडीपी बढ़ के हो गया लगभग $250,000 million. और इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था, इट बिकेम अराउंड $619. ये इंडिया की एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक इंडिया की जर्नी फ्रॉम 1 AD, फिर एक पड़ाव मैंने दिया बीच में 1600 AD का, फिर 1947 की बात की. First AD, Indian economy was 28% of world GDP. 1600 AD, Indian economy was 22% of world GDP. Whereas in 1947, the size of Indian economy was less than 2% of world GDP. So India contributed less than 2% in world GDP. Now, ये जो 22% 1600 AD में, उससे हम less than 2 पे आ गए. इसको आप colonial, कोई आपसे पूछे what is colonial exploitation? This is colonial exploitation. इंडिया का जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट में शेयर था वो 33% था 1600 AD में. 1947 में इंडिया का वर्ल्ड एक्सपोर्ट में शेयर रह गया लेस देन 2%.
This is colonial exploitation. How Indian economy was systematically ruined. अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं. फर्स्ट जो ब्रिटिश रूल था उसको हम 3 फेजेस में डिस्कस कर सकते हैं. फर्स्ट फेज वाज फ्रॉम 1600 AD till 1757. 1600 AD, all of us know that East India Company was established. 1600 AD से 1757 का जो टाइम है उसको आप अर्ली ब्रिटिश पीरियड भी कह सकते हो. 1757 to 1857. 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी और 1857 में स्पाई म्यूटिनी हुआ था जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं. सो फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी टिल द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस इज सेकंड फेज ऑफ ब्रिटिश पीरियड. एंड थर्ड इज 1858 to 1947. सो दिस इज ब्रिटिश क्राउन पीरियड. मैं इनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा इन तीनों फेजेस की. फर्स्ट फेज इज 1600 AD to 1757. नाउ ये बात समझना जरूरी है that British came to India as traders. They had twofold purpose while coming to India. Number one, they were in search of raw material for the factories of Britain, and secondly, they were also looking for the market for the manufactured goods of British factories. तो उनको एक तो रॉ मटेरियल चाहिए था और साथ में उनको बाजार चाहिए था, मार्केट चाहिए थी. और इंडिया उनको सूट करता था दोनों चीजों में, क्योंकि इंडिया में भरपूर एक अबंडेंट रॉ मटेरियल भी था और इंडिया की पर कैपिटा, जैसे मैंने कहा कि 1600 AD में इंडिया का जो वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो 22% था. तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम कैसा होगा. उसी हिसाब से दोनों चीजों में, दोनों हिसाब से इंडिया को सूट करता था. सो द ब्रिटिश क्राउन हैज ऑथराइज्ड ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड 30,000 pound ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर विद इंडिया इन एक्सचेंज फॉर गुड्स. और काफी गोल्ड एंड सिल्वर, काफी बुलियन, इसको हम बुलियन कहते हैं, जो गोल्ड एंड सिल्वर प्रेशियस मेटल जो इंडिया में आया, और इंडिया से काफी गुड्स बाहर गए. वो एग्रीकल्चर गुड्स थे, स्पाइसेस थे, टेक्सटाइल था, बड़े प्रोडक्ट्स इंडिया से बाहर गए. और कंपनी ने खूब, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने खूब पैसा कमाया इस दौरान. सेकेंड फेज 1757 to 1857. 1757, the year, this was the year when Battle of Plassey was fought between the forces of Lord Clive and Nawab of Bengal, Sirajuddaulah. Now, this Battle of Plassey, it paved the way for British entry into India. British got political and economic power over Bengal, और ये वो फेज था जब डायरेक्ट प्लंडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हो गया. थर्ड फेज 1858 to 1947. 1857, all of us know that Spy Mutiny occurred and फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं. इस वॉर ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी. इनफैक्ट जो ब्रिटिश क्राउन था, इट डिसमिस्ड कंपनीज रूल एंड टुक ओवर द रेन्स ऑफ इंडिया इन इट्स ओन हैंड. और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल इंडिया में शुरू हो गया. और ये फेज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस फेज में ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस आई, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आई, जुडिशियल सिस्टम में चेंजेस आई, देन रेवेन्यू सिस्टम, पब्लिक वर्क्स जो मैंने अभी पीछे भी बात की. और ये वो फेज था जब इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल कैपिटल के थ्रू इंडिया को काफी एक्सप्लॉइट किया गया, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया गया. इसकी बात मैं भी आगे करूंगा. वेल, ये 3 फेजेस हैं. अब हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. इसमें मैं 5 ये जो ब्रिटिश रूल है, ये जो ब्रिटिश इंपैक्ट है इंडियन इकोनॉमी पे, इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नंबर 1, इम्पैक्ट ऑन इंडिया जीडीपी. नंबर 2, इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री. नंबर 4, इम्पैक्ट ऑन इंडिया फॉरेन ट्रेड. एंड नंबर 5, ड्रेन ऑफ वेल्थ. अगर हम इंडिया के जीडीपी की बात करें तो 1600 AD में इंडिया का जीडीपी था $74,250 मिलियन, जो बढ़ के हो गया 1947 में $250,000 मिलियन. तो ऑलमोस्ट 3 टाइम इंक्रीज इंडिया के जीडीपी में हुआ. जबकि इंग्लैंड का जीडीपी जो था वो 1600 AD में था लगभग $6,007 मिलियन, मतलब $6,000 मिलियन के आसपास. और 1947 में इंग्लैंड का जीडीपी का शेयर हो गया लगभग $314,000 मिलियन. तो इंग्लैंड का जीडीपी बढ़ जाता है लगभग 50 टाइम से, 50 टाइम से, और इंडिया का शेयर बढ़ता है ओनली 3 टाइम से.
अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम था 1947 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, $550 और ये बढ़ते हुआ 1947 में $619, $619। जबकि इंग्लैंड का पर कैपिटा इनकम 1600 में था $974, जो 1947 में बढ़ के हो गया $6,361। मीन्स इंग्लैंड का जो पर कैपिटा इनकम है उसमें जो इंक्रीज हुआ है वो लगभग हुआ है 553% का, जबकि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है उसमें इंक्रीज हुआ है लगभग 12% का। तो ये जो इंग्लैंड का राइज है, इट वाज एट द कॉस्ट ऑफ economic deprivation of India. So England rose at the cost of economic exploitation of India. Number 2, impact on Indian agriculture. Indian agriculture पे जो ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट है, इसमें मैं दो मेन इश्यूज डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर 1, रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। नंबर 2, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो फर्स्ट है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में ब्रिटिश ने 3 तरह के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। नंबर 1 वाज जमींदारी सिस्टम, नंबर 2 वाज महलवारी सिस्टम एंड नंबर 3 वाज रियोतवारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम मीन्स इट वाज अ ड्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड और जमींदार टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड सबमिट विद द गवर्नमेंट। जो महलवारी सिस्टम था उसमें क्या था, महलवारी सिस्टम में इट वाज अ ड्यूटी ऑफ महलवार और विलेज हेडमैन to collect land revenue from the farmers and submit with the treasury, with the government. जो जमींदारी सिस्टम था, it was introduced in 1793 by Lord Cornwallis. पहले बंगाल और बिहार में इंट्रोड्यूस हुआ, बाद में वो बाकी जगह फैला। जो सेकंड फेज था, जो महलवारी सिस्टम था, it was introduced by Lord William Bentinck. थर्ड जो सिस्टम था, it was रियोतवारी सिस्टम। रियोत means a single unit, a farmer. So रियोतवारी सिस्टम में it was a duty of farmer to submit land revenue to the government. So there was direct connect between the farmer and the government. So there was no middleman. ये जमींदारी सिस्टम था, it was very exploitative in nature. जो जमींदार थे, they were made hereditary owners of the land, whereas tillers of the soil, they were reduced to landless laborers. Number 2, landlords, they charged land revenue as high as 10/11 of total produce, which is around 91% of total produce went as a land revenue. Number 3, Jamindars, they emerged as new political allies of the British. So जब एक क्राइसिस का टाइम था, these Jamindars, they acted as buffer between government in the one hand and peasants on the other. At the time of independence in 1947, 57% of land area was under Jamindari system. And finally, friends, this Jamindari system, it caused immense miseries and social tensions among farmers. Commercialization of agriculture means transformation of Indian agriculture from food grain centric economy to cash crop centric economy. So why it was done? No, what factors contributed to commercialization of agriculture? Number 1, British, उनको मैंने आप पहले भी बताया कि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी फैक्ट्रीज के लिए ब्रिटेन में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन। उससे क्या हुआ, उन्होंने इंडियन फार्मर्स को कहा कि आप कॉटन जो है उसको कल्टीवेट कीजिए, जूट कल्टीवेशन, शुगर केन, प्लांटेशन क्रॉप्स, तो इनको प्रमोट, इंडिगो, इनको प्रमोट किया गया फॉर फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। सेकंड, एक्सपेंडिंग रेल एंड रोड नेटवर्क। तो ये जो एक्सपेंशन हुआ ट्रांसपोर्टेशन का इंडिया में, इट फैसिलिटेटेड कमर्शलाइजेशन। उससे क्या हुआ, जो पोर्ट से हिंटरलैंड्स में सामान जाना है या हिंटरलैंड से पोर्ट में सामान जाना है, रॉ मटेरियल जो भारत से बाहर जाना है और फिनिश प्रोडक्ट जो बाहर से भारत के डिफरेंट प्लेसेस में जाना है, वो ट्रांसपोर्टेशन से इजीली ट्रांसपोर्ट होने लगा। थर्ड, ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल इन 1860s। स्वेज कनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करती थी एंड इट रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू लंडन by around 7,000 kilometers and by 36 days. This Suez Canal, it was game changer as far as sea trade of Britain with India was concerned.
फोर्थ, अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हो गया बिकॉज ब्रिटिश दे यूज टू इम्पोर्ट रॉ कॉटन फ्रॉम अमेरिका. अब सिविल वॉर की वजह से उन्हें वहां से तो मिला नहीं, तो सारा का सारा फोकस जो था वो इंडिया पे शिफ्ट हो गया. So these were few reasons that why British, how commercialization of agriculture occurred. अब इसका impact क्या हुआ? Different impact commercialization के हुए. For example, crop production in India, it became specialized and localized. Sugarcane in Deccan region, cotton in Berar, Maharashtra, then wheat in Punjab, then jute in Bengal. तो एक तो ये चीज. Number two, Indian farmers, they were forced to produce, indigo on 15% of the land. अब इंडिगो में कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इंडिगो आपकी जो जमीन है, फील्ड जो लैंड है, उसको इनफर्टाइल कर देता है. तो फार्मर्स दे वर रिलक्टेंट टू कल्टिवेट इंडिगो, बट दे वर फोर्स्ड टू डू दैट. Landless laborers, they increased from around 8.2 million in 1971 to 49 million in 1951. तो 1871 में ये थे सिर्फ 8.2 मिलियन और 1951 तक आते आते ये हो गए अराउंड 49 मिलियन. So आप देख सकते हैं अराउंड 6 to 7 टाइम इंक्रीज लैंडलेस लेबर्स में भी हुआ. एंड नंबर 4, a new class of merchants, traders, middlemen, it emerged and it was also exploitative. तो उससे जो लैंडलेस लेबर्स थे, जो टिलर्स थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ गया. एंड फाइनली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, it led to occurrence of famines in India. जो unnatural famines, not man-made famines. इससे क्या रीजन ये था कि इंडिया में फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम हो गया, कैश क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया, और वो भी ब्रिटिश फैक्ट्रीज के लिए. तो इंडिया में एक डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हो गया. 1940s में बंगाल में जो फेमाइन आया था, उसके बारे में अमर्त्य सेन का भी काम है. एंड ही सेड दैट मोस्ट ऑफ द फेमाइंस व्हिच occurred in India, they occurred because of administrative inefficiencies rather than natural causes. Well, अब हम बात करेंगे impact of British rule on Indian industry. Indian industry का जो impact है, implications हैं, British rule की जो implications है Indian industry पे, उसको मैंने 3 parts में discuss किया है. Number 1, impact on manufacturing output. Number 2, decay of local industry and craft. And number 3, decay in textile trade. Well, friends, 1750s में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में शेयर था वो था लगभग 22%. 1830 तक आते आते वो शेयर रह गया 17.6% और 1880 तक आते आते वो शेयर रह गया 2.8%. तो आप देख सकते हो कि 1750 में 22% है और 1880 तक आते आते वो सिर्फ 2.8% रह गया. नाउ मैन्युफैक्चरिंग वाज फिनिश्ड, मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो खत्म कर दी. अब हम बात करेंगे डिके ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स. जो इंडिया की लोकल इंडस्ट्री थी ब्रिटिश टाइम में, उसको हम 4 पार्ट्स में डिस्कस कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी में जो फार्मर्स थे, जो ऑफ सीजन में वो काम करते थे, फॉर एग्जांपल वीविंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, या छोटे मोटे और काम हो गए, या जैसे फ्लोर ग्राइंडिंग हो गया, राइस पाउंडिंग हो गया, तो ये कुछ काम. सेकेंड जो कैटेगरी थी वो सब्सिस्टेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आ गई उसमें. फॉर एग्जांपल इसमें भी वीवर्स आ गए, पोटर्स आ गए, ब्लैक स्मिथ हो गया, कारपेंटर हो गया, ये वो लोग थे. थर्ड इज विलेज बेस्ड इंडस्ट्री. विलेज बेस्ड इंडस्ट्री में बैंगल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, देन सिल्क का काम हो गया, टेक्सटाइल का छोटा मोटा काम हो गया. और जो फोर्थ काइंड थी वो अर्बन बेस्ड इंडस्ट्री थी. उसमें एडवांस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग था, सिल्क मैन्युफैक्चरिंग था, देन ग्लास, पेपर इंडस्ट्री, सो ऑन. तो ये कुछ इंडस्ट्रीज थी. वेल, ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ, अब ये जो इंडस्ट्रीज थी इनको पैट्रोनेज मिलती थी लोकल रॉयल डायनेस्टीज की. नो, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, these local royal dynasties, they started decaying, and because of fall of local royal dynasties, these industries, they lost patronage and they died their natural death. एक और रीजन इसमें है emergence of new westernized elite class. ये वो लोग थे which were Indian in blood but westernized in taste. तो ये जो कंजम्पशन करते थे गुड्स की, वो मेनली ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड होती थी. तो
तो इससे भी लोकल इंडिजिनियस डिमांड पे फर्क पड़ा। फाइनली डिके इन टेक्सटाइल ट्रेड, ये जो थर्ड इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडिया का उसका कोई सानी नहीं था। मसलिन ऑफ ढाका ऑल ऑफ अस नो, इट वाज वर्ल्ड फेमस। जो रिफाइंड मसलिन होता था उसको मलमल कहा जाता था, एंड इट हैड मार्केट्स इन ऑल द मेजर वेस्टर्न कंट्री। जो ब्रिटिश की ट्रेड पॉलिसी थी इट वाज वेरी डिस्टॉर्टेड इन नेचर, और ब्रिटिश की जो डिस्टॉर्टेड ट्रेड पॉलिसी थी वो क्या थी, द इंपोर्ट्स दे वर मेड ड्यूटी फ्री, वेयरएज एक्सपोर्ट्स उन पे काफी ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगी। तो इंडिया से जो मसलिन जा रहा है, इंडिया से जो गुड्स जा रहे हैं, उनके ऊपर खूब सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, सो दैट इन इंटरनेशनल मार्केट दे बिकेम वेरी एक्सपेंसिव। जबकि ब्रिटेन का कोई चीज इंडिया में आ रही है वो बड़ी सस्ती आ रही है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, एंड इन इंडिया दे रिप्लेस्ड इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स। तो ये हुआ इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री। नाउ द फोर्थ इम्पैक्ट इज इम्पैक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड। In 1600 AD, India's share in world export was 33%. And in 1947, when British left, India's share reduced to less than 2%. तो ये जो एक्सपोर्ट्स का शेयर जो था ब्रिटिश टाइम में बिल्कुल खत्म हो गया। इंडिया एक बड़ा जाना माना एक्सपोर्टर कंट्री था, तो इट वाज रिड्यूस्ड टू एशेस। नंबर 2, इंडिया in 1947 it had become exporter of raw material and importer of finished products, जबकि 1600 AD में हम दुनिया भर को अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचा करते थे। एंड थर्ड, ब्रिटेन हैड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स दे वर विद ब्रिटेन ओनली, एंड द रेस्ट ऑफ द ट्रेड दे वर विद सीलोन, दैट इज श्रीलंका, ईरान एंड चाइना। तो ये फॉरेन ट्रेड को लेके इम्पैक्ट थे। And finally, I will come to drain of wealth. Drain of wealth was that portion of GDP which was not available to India for consumption or for capital investment, but drained off to Britain. Or you can say that drain of wealth refers to unilateral transfers from India to Britain, without any adequate return, whether it is economic or something else. बड़े सारे लोगों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर काम किया। अलेक्जेंडर डो एक ब्रिटिश था, उसने ही वाज वन ऑफ द पायनियर अमंग द पायनियर टू डू वर्क ऑन दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इंडिया में काफी लोगों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर काम किया। इसमें कुछ 2-3 जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं, उसमें दादाभाई नौरोजी हैं, हु इज हेल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही रोट ए बुक, Poverty and Un-British Rule in India, and in that, Dadabhai Naoroji mentioned that, from 1833 to 1872, India से लगभग in terms of pounds 50 करोड़ जो था इंडिया से बाहर गया। There is another noted economist of that time, C.N. Vakil. He calculated drain of wealth from the year 1834 to 1939. And he said that British drained off around 85 crore pounds from India. Another noted economist, William Digby, he calculated drain of wealth from 1757 to 1858, from Battle of Plassey till First War of Independence. And he said that during this time, British, they drained off around 50 to 100 crores of pounds. ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था, इनको हम होम चार्जेस, इनको ब्रिटिश होम चार्जेस भी कहते थे। दे वर इन टर्म्स ऑफ दे वर लाइक फॉरेन रेमिटेंसेस। फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको जो डिविडेंड पे किया जाता था। सेकेंडली, जो ब्रिटिश कैपिटल इंडिया में इन्वेस्टेड थी, फॉर एग्जांपल इन इंडिया रेलवे कोचेस, रेलवे इंजन्स, रेलवे लाइंस, दे वर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, लेकिन वो जो कैपिटल थी वो ब्रिटेन से आई थी, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जो था वो इंडिया पे करता था। थर्ड, जो ब्रिटिश आर्मी थी विच वाज स्टेशन्ड इन इंडिया, उसका जो खर्चा था। देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ब्रिटेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया में था, उसकी सैलरी, उसके रहने का। देन ब्रिटिश पर्सोनल्स हु हैड रिटायर्ड, देयर पेंशंस, एन्युइटीज। तो ये जितना भी खर्चा इंडिया से बाहर गया किसी ना किसी फॉर्म में,
it was called drain of wealth.